Hello. So, am I audible to you all? Hello. Just let me check 1 minute. Yes, you are audible. Yeah. Yeah, Yes, okay. Pankaj, you're audible. Yeah. So please give just 2 minutes. Let's wait 2 minutes more for the other people to come. Then we will start. So should we start now? Actually, now it's 9 to. Guys, it is a collaborative project, so you need to be a participant. So not like just listener or. Yes, Okay. yes, you are audible, Pankaj. Yeah. Yeah, So Pankaj, actually, you can start with the session. yeah. So We are listening to you. yeah, just You are don't completely listen audible. only. Okay. Actually, Yes, yeah, yes. we are collaborating. If possible, you can open your what call webcam also that we can interact more with the like clearly. So okay, no problem. Let's introduce the project which we are going to do. Uh, as I have mentioned in the WhatsApp message, all detail about that what we are going to do. Before that, actually, let's brainstorm like how we have come to this problem and why we are going to solve this problem. Before doing anything, you should ask a question: why I should do it? Okay, so there should be like a core, like genuine reason for doing anything. If you have that intuition, then you are going to find the way anyway. Like you will anyhow you are going to solve that problem. So in this session, as I mentioned, first we will brainstorm ourselves, like what problem we have faced in like healthcare industry, and how to try to solve that one. Similarly, like how I come to this pain point and I try to come with a product that's called Meta Hospital. So here, like today's session is just introduction. Now after onward, like the interested people, then further we will collaborate, and then I will going to tell how like like the person who is going to contribute in this project, how they are going to benefit from this. Okay, so actually, let me actually I have. I'm not going to like traditional using that one what called uh, PPT. Just I'm using my whiteboard only. Let me share my screen first that we can. Okay, so my whiteboard is visible to all. Be Yeah, active. yes, Yeah, Pankaj. Yes, yeah, yes, be active. It's Pankaj. visible, it's visible, it's visible. Yeah, yeah. So like first we will let's talk about the what is brainstorming. Okay, and how we come to okay. I will list out the like any person first. It will be voluntarily. Okay, so like any person who want to speak any problem, speak about your past, uh, your past bad experiences with hospital, like any kind of with hospital. Okay, like how we have come to this point. So any person may like I know every person have like had like bad experience with the hospital, but like suppose there is a problem. Okay, like as a engineer, like problem is like our fuel. Okay, if there will be no problem, then what we will going to solve? So as an engineer, we are going to solve a problem, any problem. So if there will be problem, suppose I will face that problem. Okay, facing the problem, and then I will try to think whether it is possible that I will convert this problem into such a solution that I will, after problem that we are experiencing, we will come with a solution. Okay. And after coming to the solution, you will try to implement. Is it possible that uh, POC that's called proof of concept? So what? Your Okay, my audio is not stable. Okay, let me change my Wi-Fi. Give me a minute. voice is breaking.
Yeah, one. I'm changing my Wi-Fi. I think now it will be a stable. I have changed to the higher bandwidth network. Yeah, so guys, just list out or tell me some issue that you have faced. Any problem that you have faced in the hospital? Will you just list out some problem? Any person can. Hello. Yes, Pankaj. Yeah. So Hello. have you faced any issue in the hospital like past some days or some year? Have you like In had whole any bad life, I mean, in every stream I can speak now. Yeah, anything like you tell about the past experiences. Yeah. One of my bad experiences that actually 1 year before I was actually giving the interview for coding Mhm. for a job, 7 lakh package, and I was very confident before the interview because I confusion that I was overconfident in that interview, na? Mhm. But I was very weak in coding. So when he started to put a question, so then I came to know that this is basically a long way to pass. So I joined Skiller after that Okay, interview. okay, Actually, okay. that was really bad experience, but I learned a No, lot. no. Look, Yeah. what happened? Our failure, like failure, is one signal. People in India like take it as a like very in a bad manner. Failure is like a signal. It is a flag. It is a like it is a trigger point. It is going to trigger you. Man, this what you have knowledge that is not enough. If you fail, that means one. When in America or US, America, UK, and like any European country, if you will go there and you will say that I am working in a Google, okay, people will not give so much of value for that one. But if you are telling that, man, actually, I am an entrepreneur, I have tried this idea, I have failed, now I'm trying with this one. They will be like, they will inspire you, and yeah, they will appreciate also. So like they are like failure. That failure is like also a knowledge. If you are doing something, okay, and you fail, it means that that is not a correct way that you have done past. So you have to either change your strategy or you have to change your like update yourself like a knowledge or kind of thing. Okay, so Yes, okay, Pankaj. Yes. how I come to this problem with pen point, like why I'm trying to do this project. I'm going to tell about that. Like 3 years earlier, my mom has like both kidney was failure. Okay, and I belong to like from Bihar. Okay, my native place is Bihar. So like actually earlier we tried to take like what called all the clinical or the support from the Patna hospital, that is called Parasite Hospital. But what happened that people try to resolve the problem like, but it's not possible. That directly they are saying that now it's not possible. Actually, what we have to do, actually we can save only one kidney, and one kidney actually we have to discard. Actually, so that's we are not ready for that. So we again went to Kolkata, that's called Medica Hospital. So there was a doctor P.K. Misra. Okay. So actually we consult with them. So they are like they have suggested some technique that we can use the microsurgery and the things, and then we can save that both kidney. So at that time, actually, if suppose if we do not connect with that Dr. P.K. Misra, so my mother will have like lose their one kidney. Actually, we will discard it that one. So this is a lack of information that this can be possible. Okay, people are one reminder, if you disconnected, no, again with the same click, you join. Okay, we are using the free version, we will update that one. But today actually just I am going through that one only. Actually, I already message using a Zoom, Google Meet will be better because there will be no any limitation for that. So I thought that there is a lack of information. There is no person
in a contact, like suppose a person that, like there is no any point of contact for a person in some medical field, so they will not able to even uh, able to get the right suggestion what to do or what to not do. Okay, now after getting treatment, after like 6 months of treatment, my mom recovered very well. Then after each like 3 months, actually we have to go to the Kolkata for the regular checkup. Okay, in regular checkup, just they take some some like what call X-ray report. Okay, and it is like we have to show the doctor and he check the status of kidney. Then again we have to come back. So like each time, like actually it is going to take around like 15 to 13K. Okay, that was actually it cost. So I suggest like why not? Is it possible that doctor we will arrange some meeting online and you will suggest some what call uh, like what report you want to see. You directly you can send on the call or any like online medium. Then we will go to the nearest like X-ray center can be like what call everywhere there X-ray or kind of like what call a diagnosis center. Each a small city you can get all the diagnosis center. So you will just suggest the like what report actually we have to go through. We will take that report and we will send you to you directly. And using that report, you will just talk to patient and check the like you can tell about the status. Patient will be also that whether I have any pain in abdomen or not and any is there or not. And then you will prescribe the medicine. Okay, so doctor was ready and it like guys, this medical aspect you can see on the like Google also. It is like a like super specialist hospital. Okay, so if that doctor is ready to come on our platform, so why not actually? I thought that it should be launched like Pen over India, and because there are some limitation. Okay, so there are limitation. What is limitation? Just let me note it down. Like why doctor agree to come? Because when doctor is like using some working with some other hospital, so like they have to give up like huge commission to that hospital. Okay, like suppose a doctor is asked like charging 1,000 rupees, so hardly he is going to get around 500 rupees or 500 or maximum 700 rupees. And also it is very costly for their patient also. Okay, because each time patient like suppose for casual like suppose some persons are suffering from fever one. Okay, like local person can also check out the what is the fever using the Siemens thermometer or kind of there is a small equipment that little bit if you will train your local doctor, no, they will able to work with our platform. Okay, so what happened that this can be like very useful for the like coming like as a in India like we know the like health facilities not as according to the like a standard of like European or any other country. So we are like underprivileged in that field. So like our growth chance is very broad. So what that the doctor has suggested some prescription and that prescription actually we uploaded to Tata like 1 mg. And from there, my medicine was delivered to the patient directly. So like we can build this whole ecosystem for the doctor. Okay. And also actually we have a session with the doctor also like in Bangalore. There is a doctor name is Dr. Sukanya. She is a specialist in gynecologist and working with Baptist Hospital. Okay, so actually we are doing that one. So she has also like some like some patient had also same kind of one of my relatives is also like have consulted with that doctor and now due to some urgent she need to go to their hometown and with the same doctor she want to connect. So there was
like there was other alternative like Zoom meeting is there, or whether they can call video calling. So why people will come to our platform? So what we are going to do, we are going to standardize like why hospital is going using, because they have some kind of standardization of that services. Okay, like what should be the format of my report? Okay, in which font, what's like where information should be mentioned, that it will be easy for the doctor directly. They will track the issue, like what is the issue or the, okay, when you are going to remote area or different hospital or different state, different city, the remote format which you are also going to like differ. Okay, like usually I will with my experience I will tell, in Bihar, like if you go for the CT scan, so what they will do, that they will just give the hard copy of that one film. Okay, they will not given a proper document from the lab technician. But when in Bangalore you will get, so like most of time like doctor they do not see that one hard copy of document. They directly like CT scan, from CT scan they will generate a one a document like a doc type or like some PDF type, and they will send to the doctor. Even you can take a printout, and that will going to show. So what is happening, like the cost of this film is reduced. Okay, so we will make our like hospital services cheaper than the current. So like suppose a person is spending 1,000 rupees, we can reduce it to like 600 rupees or 500 rupees. So like because physical document come with some what called, we have to trade with that one, what called the money. Okay, if you are taking a print out of that report, and like suppose in a future if you want, suppose sometime you may miss that report, but that will be available in a PDF. If you want a physical, you can go and just take print out. Pankaj, Yeah. please forgive me to interfere. Actually, can I get recording of this meeting? Actually, I am explaining the whole idea of the concept. No problem, I will provide you directly. Yeah. Actually, I have to go for some work. Actually. Yeah, okay. Sorry. You may go, no problem. Okay, so now come to the next topic, how how we are going to collaborate, and like how we are going to get benefited from this project. Okay. Pankaj, hi. Yeah. So like I am not very clear with the problem. Like you are saying that the patient will use this application. I'm right? going to come on architecture, like how this is going to be resolved. Okay, I have just brainstormed about the idea. I have just given the like pain point of the problem, like we are doing. Where is Okay. the issue? I have not come like how the person is. I'm coming to the architecture of that project, how we are going to. Okay. Yeah. If you have any question, please ask. And otherwise, we will move to the next. Hello. Okay, so moving to next. Now, how actually this project is going to be. So here I'm going to discuss like high level design one, system design perspective. Okay, when we are coming, like when something we are digitalizing, no, so there is a threat of security. So like I am already like spy blockchain developer in Yeah, it's visible, Pankaj. You can go ahead. yeah. So in system design level, what we are doing, no? Like it is a very what called a sensitive information. Like suppose a person is suffering from some digit like airs or such kind of, like he's not he's not willingness to share with other person. So like suppose that document is leaked, no, so that is a really issue for that one. So to handle this kind of scenario, actually we are using
blockchain. Okay, so we are also using NFT, non-fungible token. Okay, so let's in technical we will go deeper into that one, but let's give overview of the system, how the system is going to be. So in our system, there are 3 participants. Okay, one is doctor, like first is patient. Okay, then there is one diagnostic center. Okay, and one is a doctor. These 3 are the key of our system. Like suppose if a patient is trying to connect with the doctor, so like there will be list of doctor, he will request, like it will be all handled by our server. Let's suppose this is our server, so he requests some particular doctor, like he want to connect with uh, ortho or gynecologist or any kind of doctor, particularly there will be list of them. So then doctor, so that patient request, so the patient will be generate one ID that's called token. We are using tokenization system for that one. So he will generate a request with his patient user ID and token. Now with the related doctor, the same, they will receive a request that this patient name is this and want to take a consultant. So if doctor is approved, okay, so they will be connected with both, vice versa. Okay, after connection, after meeting, doctor will be again create one token. Okay, diagnostic token. So here what will be happen? The patient token and doctor token both will be combinedly generate a new token. Okay, and that in that token, all the information about the test, like diagnostic report, like whether you need to go through the blood report or any kind of X-ray, what things like doctor will be prescribed. There will be diagnostic center. We are going to affiliate with him, so he will get the like nearest diagnostic center. He will get a what call a request for like this facility. Are you providing? So if he will accept, so our patient go to the their nearest diagnostic center, and diagnostic center will be collect the sample, and they will generate the report, and after generating report, they will be upload to the our server using the NFT, non-fungible token. Okay, so it will be not able to anybody cannot be tamper, and whole transaction is going to be stored there. Okay, so he will going to upload there, and new document ID is going to be created after combining the patient ID, diagnosis center ID, document ID, and this doctor ID. And when suppose in the future also, like if you want to connect with like other doctor or any same doctor, so if he is requesting like he want to see your blood report or sugar level kind of things, so he doctor will be write a request. So if patient is going to approve, then only doctor will be able to access his document or his report. So actually we are securing this whole system, that it can't be tampered, and also we are like using the tokenization technique to store the all the like transaction, like using the blockchain. Okay, so like past history of the like patient will be also captured there. That is not available for any other person. That is available for the doctor and the patient, and also doctor can access that document only with the consignment of the patient only. Okay, now is it clear? Any doubt in this system? Yeah, I have doubt.
So, Yeah, please. Like, so suppose a patient is having, so this system is for specific diseases, right? Like, say, like a fever or a cold, right? Or taking X-ray. But how, like, before going to hospital, how will the patient know that I have this problem, right? He has to go to the hospital and check when, and then the doctor will suggest, right, what you have this kind of an issue, right? So Yeah. here the patient is directly interacting with the system and mentioning that I have this issue. No, But no, how no, do you, how do the patient know? no. They are not just interacting with the system. They are like connecting with the doctor directly. We are making our all like what called So web the meeting type patient of. will, yeah, understood. So the patient will just request any doctor, you are saying, right, that I'm facing this issue, Yeah, or like how? right now, like suppose any doctor he requesting, and suppose that doctor is not willing to come on our system, then what we will do? So like there are some set of doctor, and also like you with the consignment of that doctor, okay, patient may be also request. So come to the this meta hospital and we will connect there. Okay. Or either like doctor is going to register with our like we will get give some certification, some standard is there. So we will maintain that some standardization because each area by area report is going to change. So here like report how are they going? Like doctor and patient they will directly have a meeting online. Yeah, I mean, suppose we have 100 doctors list at over the system. Okay, 100 doctors are there. Huh. Okay, and the like 100 doctors, like some of them are surgeons, some of them are general practitioner, right? Mhm. So they can check fever and all, and some are specialists, right? Some ortho, like ortho, and all. Some are specialized. But like I'm a patient, so I have a problem, right? I'm feeling some body pain or what, so I will go on the list, right? So I will check which doctor, I will request which doctor, right? Yeah, That I'm like not sure, right? Because I don't know what is the problem with me. yeah. So Correct. there is a one a smart flow. Okay. In a smart follow, like if you have no any clue about the doctor, which doctor I should concern. Okay. So there are Mm. set up some question, tick mark question will be there checking checkbox type. Like I'm having a fever, I am having a body pain. Okay. I have also having a mild headache also. So with the help of this information, we will like what call we will guess like what will be the possible like uh, problem or what will the best suitable doctor. Suppose fever this kind of things is going to be tackled by general physician. Okay, Okay. so according to the your like check mark that you have provided that I have a cough, I have a like mild fever Okay. or Then we headache. have the list of the general physician, and Yeah, then the patient will select one of them, right? yeah. So this is just one model. There are several models. Like suppose I'm already connected with a very specialist doctor in some in Bombay. Okay, but I just went there for 3 days. I get medicine. Now for regular meetup also like if I have a small problem. Okay, I want to connect with doctor. So for same thing, suppose I am sitting in a Bangalore, I will not able to go to the directly for the what called Mumbai. So in that case also, with the consignment of the doctor and the patient, they will connect. We are going to develop an ecosystem. Like YouTube is a one like an ecosystem where like user can be also come, where like advertisers also come and they will collaborate. They will give money and then like a creator will get money. So this kind of scenario. So we are like if you are developing a system, also you have to like be like what call ecosystem. You have to create an ecosystem for that one. So whether like this can be utilized by the like government hospital also. Okay. And several like we are developing a platform and it will be open for all. There are some guidelines according to government guidelines.
we are going to like and also Drug Control Board of India also. So that things it's going like already like Tata 1mg, okay, or this similar like medicine delivery company are there. We can do partnership with them. Okay, what doctor is going to prescribe the medicine, it will be automatically, they will be we will interact with their APIs, we are requesting to them, same medicine will be ordered, the help patient address, it will be automatically going to deliver. So what we are going to like as an engineer, what we are going to simplify our what called simplify like problem. Okay, the user or the patient who is going to face the problem, we will cut down some problem, and with the system, help of system, we are going to solve that issue. And this diagnostic center is like the hospital, right? No, diagnostic center is like जांच घर. आप जांच घर जैसे जाते हैं ना, जहाँ पे आप ब्लड सैंपल देते हैं आप जांच कराने के लिए, Okay. एक्सरे सीटी स्कैन कराते हैं. अभी जनरली क्या है ना कि आप अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप क्या होता है कि हॉस्पिटल के अंदर सब कुछ होता है, सिटी स्कैन हॉस्पिटल के ही अंदर हो जाएगा, ब्लड जांच हॉस्पिटल के अंदर. राइट. लेकिन क्या कहीं कहीं रिमोट एरिया में क्या होता है ना कि डॉक्टर बैठते हैं अपने टाइम, मतलब कि अपना इस पार्टिकुलर मतलब कि अपना तो चेम्बर में, मतलब चेकअप कहाँ पे होगा? लाइक चेकअप कहाँ पे होगा? चेकअप डॉक्टर होगा को अगर उस पेशेंट चेक करना है तो नहीं, हाँ. चेकअप जो होगा ना वो चेकअप होगा उसके पेशेंट के नियरेस्ट डायग्नोस्टिक सेंटर में, और वी विल मेक श्योर दैट इट विल बी लेस देन 10 to 15 किलोमीटर रेडियस. सो वी आर तो गोइंग टू, मतलब चेकिंग अलग डॉक्टर करेगा और ये वाला डॉक्टर अलग होगा? देखिए चेकिंग जो होता है ना वो सेम, देखिए चेकिंग के लिए अलग से पढ़ाई करना पड़ता है, डॉक्टर बनने के लिए अलग से पढ़ाई करना पड़ता है. बोथ पर्सन कैन नॉट बी डू डायग्नोस्टिक. यहाँ पे जो डॉक्टर होता है वो सिम्टम मतलब जांच करता है, आपका हाथ पकड़ के चेक करेगा क्या है, मतलब पल्स रेट क्या है, फीवर क्या है, ठीक ना. अगर मान लिया कुछ अगर कहीं पे पेन है तो उसको दाब के देखेगा कि यहाँ पर कुछ तो मतलब कि गिल्ट नहीं ना बन गया है, उस टाइप का जो होगा. तो उसके लिए हम लोग लोकल जो स्मॉल डॉक्टर होंगे ना, जो वो सब ले सके, जिसमें बीपी जांच कर सके, है ना, ब्लड शुगर मतलब विथ इन मिनट सिस्टम आ गया, IQ चेक, ये सब चेक, वो सब रहेगा. ओके. तो मतलब कि छोटा जो डॉक्टर सब होता है, झोला साहब जो गाँव में हाँ. डॉक्टर होता है ना, वो सब हैंडल कर लेगा. डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करेगा कैसे कैसे क्या करना है, और उसको करेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस. सो एक एग्जांपल, तो मैं पेशेंट हूँ, ठीक है. मैं सिस्टम पे जाऊंगा और मेरे को मेरे रेडियस के अंदर 15 किलोमीटर रेडियस के अंदर सपोज जो भी डॉक्टर होंगे अवेलेबल, ठीक है, तो उसका हमारे को लिस्ट आएगा, नहीं ठीक नहीं है, नहीं मेरे नहीं एरिया में. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. ये इंडिया में कहीं किसी भी डॉक्टर से आप कनेक्ट कर सकते हैं. देखिए हम लोग रेडियस से डॉक्टर को फिक्स नहीं कर रहे हैं, हम लोग रेडियस से हम लोग क्या फिक्स कर रहे हैं, जांच घर को, डायग्नोस्टिक सेंटर को, क्योंकि वहां पे पेशेंट को जाना पड़ेगा, ब्लड सैंपल लेने के लिए वहां पे जाना पड़ेगा ना, एक्सरे कराने के लिए वहां पे जाना पड़ेगा ना. हाँ, तो लेकिन उसके पहले तो चेकअप करेगा ना डॉक्टर, तो वो चेकअप कैसे होगा? वो चेकअप हमारा वर्चुअल मीटिंग के थ्रू होगा. अरे वर्चुअली चेकअप कैसे हो सकता है? आपको डॉक्टर अपना नाड़ी चेक करता है नहीं, ना? वो वही है ना कि हम लोग जो लोकल जो डॉक्टर होते हैं ना, उसको हम लोग हाँ प्लेटफॉर्म पर लेके आएंगे. मतलब ऐसे समझिए कि हाँ, एक ठीक है, नर्स लेकिन नर्स लेके आएंगे फिजिकली तो, चेकअप. हाँ, तो अच्छा. वो आपको छोटा मोटा जो डॉक्टर है ना, जो बुखार उखार चेक करता है, पल्स रेट चेक करता है, हार्ट बीट चेक करता है, वो हर एक इवन गांव में भी, बिहार के हर एक रिमोट गांव में भी मिल जाएंगे. जो लोग आके सुई देते हैं, हल्का फुल्का बुखार होते हैं, तो उन लोग के साथ पार्टनरशिप करेंगे कि जिस समय आपका मीटिंग रहेगा उस समय वो डॉक्टर वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, आपको असिस्टेंस करने के लिए, हेल्प करने के लिए. वो पहले से ही आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेगा, वो डॉक्टर के साथ शेयर करेगा अच्छा, तो आप बोल रहे हो कि लोकल जब लैंग्वेज. वर्चुअल मीटिंग होगा, राइट, तो उस टाइम पे ये नर्स वगैरह अवेलेबल रहेगा अपने हाँ, साथ कॉल पे, लोकली जो अवेलेबल है. लोकली? हाँ, समझ रहे हैं कंसेप्ट क्या अच्छा. है. हाँ, हमको देखिए, हाँ हमको तो प्रॉब्लम सॉल्व करना है. अब सी बात है, अब बुखार तो पेशेंट खुद जांच करके नहीं ना बता पाएगा, उसका हार्ट बीट कितना है वो खुद जांच करके नहीं ना बताएगा. उसके लिए लोकली रूप से मतलब कि
बहुत लोग होते हैं ना बिहार वार में कि कंपाउंडरी करते हैं तो उन लोग को सब प्रैक्टिस हो जाता है, तो उन लोग के साथ हम लोग पार्टनरशिप कर लेंगे। हर एक इवेंट गांव में 1-2 गांव में मतलब कि आदमी एक ना कोई सा कुछ मिल ही जाएगा। जो लोग सिंपल जो दवा ववा बेचते हैं, छोटा सा दुकान खोले रहते हैं, वो लोग सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। तो उसके पास जाना पड़ेगा फिजिकल चेक के लिए। नहीं वो पैसे वो आदमी आ जाएगा, गांव में ही है, वो आ जाएगा 100-150 अच्छा, रुपया। वो आपके पास आ जाएगा। अरे हाँ, फैशन के वाह। पास आ जाएगा। अरे वाह, अच्छा, बड़ा सिस्टम है ये बहुत, मतलब हाँ, इसमें कॉम्प्लेक्स काफी बड़ा सिस्टम है, है, लेकिन इसमें हमने बहुत देखिए कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सिस्टम, लेकिन हम देखिए हम ना मूनलाइट करते थे। मेरा पहले से ही एक स्टार्टअप है और मैं उसका फाउंडर हूँ। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे ना DNP पंकज कुमार, तो आप मेरे बारे में जानोगे। तो ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है, मेरा 2 प्रोफाइल है, प्रोफेशनल प्रोफाइल है और एक एंटरप्रेन्योर वाला प्रोफाइल है। तो जो भी हम जॉब कर रहे हैं, अभी मैं करंट ऑर्गेनाइजेशन, ये मेरा प्रोफाइल है। तो मैं यहाँ पे फाउंडर हूँ ऑफ राजली, और राजली के अंदर हम लोग ये प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। ये सबसे आपने कुछ पहले शेयर कर रहा है क्या? मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ तो दिख नहीं रहा है, मतलब अच्छा अच्छा अच्छा। स्क्रीन ये बोर्ड वाला दिख रहा है। हाँ, अभी दिख रहा है। नहीं, हाँ अभी दिख रहा है। तो ये मेरा है, प्रोफाइल है। तो मैं एक फाउंडर हूँ पहले से। मैं IIM बेंगलोर से मैंने एंटरप्रेन्योरशिप में माइक्रो मास्टर किया हुआ है। उसके बाद से MIT बूट कैम्प में मैं ज्वाइन किया हुआ था। वहाँ पे हमको मतलब कि कितना 10,000 का हमको क्रेडिट मिला था, US डॉलर का। प्लस हमको अमेजन मतलब 5,000 का मिला है AWS सर्विसेज का। हमारा जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप इंडिया में रिकॉग्नाइज है। तो आप जस्ट हमारे बारे में गूगल, हम देखिए क्या होता था ना कि हम लोग के पास उतना बैकअप नहीं है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे ना, हम लोग कोलैबोरेशन मॉडल में लेके जाकर करेंगे। जब हमारे पास फंड आ जाएगा, प्रोजेक्ट को प्राइवेट कर देंगे। अभी हम इसको पब्लिक मैटर में लेके जाएंगे, और पब्लिक प्रोजेक्ट पे हम लोग क्या करेंगे, ओपन प्रोजेक्ट पे कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। ओपन प्रोजेक्ट पे कोई भी कंट्रीब्यूट करता है तो तुम्हारे करंट जो कंपनी है उसके साथ कोई इशू भी नहीं आएगा, कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, कोई फाउंडेशन नहीं। अभी हमारे पास फंड उतना नहीं है कि हम किसी हायर तो डेवलपर को। जब इसको प्राइवेट किया जाएगा बाद में, तो जो ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट किया है तो उसका कुछ हाँ, वो अब लोग आते हैं ना। कुछ। अब इसमें है ना कि कैसे हम मतलब कि बेनिफिट होगा जो कंट्रीब्यूट करेगा इस प्रोजेक्ट में, इसके बारे में हम बताते हैं। हाँ, मतलब वो भी कुछ ना कुछ चाहिए ना, मतलब अगर वो अब इससे कंट्रीब्यूट बात कर है, रहे हैं। कोई फ्री में थोड़ा ना काम करेगा। हम्म। हाँ, तो इसका मॉडल हम कैसे बताते हैं। ये है हमारा अच्छा, तो आपने IIM से ये किया, MBA किया है? IIM ऐसे मैंने माइक्रो मास्टर इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में किया है। प्लस हमने MIT से मैंने इनोवेशन लीडरशिप में हमने बूट कैंप ज्वाइन किया था। IMIT में स्टूडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का है। और अच्छा। मैंने कोचिंग यूनिवर्सिटी से अपना BTech कंप्लीट किया था। और 2000 हम लोग 70 में ही एक कंपनी हम लोग रजिस्टर किए थे, जिसका नाम था राजली, किंग्स ऑफ थिंग्स। ओके, सो उसका आप URL भी चेक कर सकते हैं, www.rajli.com। तो हम लोग क्या है कि हम किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं, मूनलाइटिंग कर रहे हैं। तो हम इसको हमने एज ए ओपन सोर्स प्रोजेक्ट नहीं बना पाए हैं, मतलब कि एज ए प्राइवेट मतलब कि प्रोजेक्ट बना के इस पे काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो लीगल इशू आ सकता है कि भाई तुम एक साथ 2-2 कंपनी में काम कर रहा है, ठीक ना। तो इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, अभी हम प्रोजेक्ट को ओपन सोर्स बना देंगे। कोई भी आदमी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, कंट्रीब्यूशन दे सकता है। आप देखिए, अब कंट्रीब्यूशन तो देगा, लेकिन उसको बेनिफिट कैसे होगा। तो अभी हम लोग क्या किए हुए हैं ना कि ईसॉप पूल बनाए हुए हैं, है ना। ईसॉप पूल में क्या है कि अभी हम नहीं जानते हैं किस कंपनी का क्या वैल्यूएशन है, कितना का वैल्यू है, कितना क्या होगा, कितना पैसा किसको क्या मिलेगा। तभी हमने क्या किया, जैसे मान लो 10% हम कंपनी का हिस्सेदारी हमने ईसॉप पूल में रख दिया, है ना। अब जो भी कंट्रीब्यूट करेगा, देखिए इसके पीछे बहुत ही मतलब कि वास्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। तो जो भी इस मतलब पूल में कंट्रीब्यूट करेगा, डेवलपमेंट पूल में ना, उसको क्या मिलेगा, एक कंट्रीब्यूशन ID मिलेगा।
ये जनरली हम लोग हैंडल कर रहे हैं। स्क्रम आपको शायद मालूम होगा, आपने प्रोजेक्ट किया, स्क्रम हो गया, जीरा हो गया और गिटहब। टिकट्स। हाँ, तो इस सब से हम लोग कैसे मैनेज करें। जैसे मान लें कि आप जो भी, जैसे मान लिया हमने आपको दे दिया कि आप हमको ये वाला मॉड्यूल डेवलप करो, है ना। अब उस डेवलपमेंट का क्या हिस्सा है उस पूरा कंपनी में, है ना, उसके हिसाब से वैल्यूएट किया जाएगा कि हाँ आपका कंट्रीब्यूशन कितना रहा, आपका टाइम कितना लगा, ठीक ना। तो आपके हिसाब से मतलब कितना लाख रुपया का आपने काम किया है, उतना का इक्विवेलेंट अपने क्या करना है, आपको ये सब दे दिया जाएगा। अब जैसे हमारे कंपनी में पैसा पंपिंग होगा, जैसे मान लीजिए कि हमने अभी टॉप पे है, हम लोग अभी मतलब इन्वेस्टर के साथ अभी है, तो जैसे ही हमारे कंपनी में आएगा तो हम आपको ऑप्शन देंगे इसको सेल करने के लिए, इसको कैश आउट करने के लिए। अब मान लीजिए कि आपके पास कुछ शेयर है, कुछ स्टॉक है, तो आप उसको सेल आउट करके आप उसको मनी में ले सकते हैं और कंपनियां उसको बाई बैक करके अपना फिर फुल क्रिएट कर लेती। तो आपके कंट्रीब्यूशन पे आपके स्टॉक मिलेगा और ये विन विन। अच्छा, तो इसके आपके साथ कौन कौन लोग हैं मतलब, और इसमें? अभी देखिए मेरे साथ तो मतलब कि कुछ मेरा बैचमेंट है कॉलेज का, है ना। वो लोग अभी कोई मतलब कि कोई कोशिश में काम कर रहा है, तो कोई अलग अलग कंपनियां में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उन लोग के हम्म। साथ अभी कोलैबोरेट करके हम लोग काम कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि क्या है कि हमको कुछ सीरियस आदमी चाहिए कि हाँ डेली कुछ ना कुछ अपडेट डाले, एटलीस्ट कुछ वीकली कुछ तो कम से कम चेंजेस लाए। तो इसीलिए हमने ऐसा हम्म। किया है। और कुछ हमको क्या है कि अभी हमको 5000 क्रेडिट मिल गया है, हम इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीपल इंस्टेंसेस बना के हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। हो सकता है कि स्टार्टिंग में हम लोग 2 साल के लिए, साल भर के लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सर्व करें, है ना। जिससे क्या होगा कि हम लोग का रीच बढ़े, बाद में हम लोग पैसा मतलब कि क्या करेंगे, इनकम सोर्स बनाएंगे। रेवेन्यू स्ट्रीम इसका ऐसा है कि हम लोग थोड़ा बहुत बहुत मतलब कि बहुत स्मॉल कमीशन लेंगे कि हम किसी को बुरा ना लगे, तो हम लोग कुछ डॉक्टर से लेंगे कमीशन, कुछ पेशेंट से थोड़ा सा मतलब कि प्लेटफॉर्म चार्ज लेंगे, क्योंकि हमारा क्या है कि हमारा रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो तो आपको मतलब कि क्या है कि आप डाटा का ट्रांजेक्शन कर रहे हो, वो भी डाटा जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसके लिए एपीआई जो है पैसा चार्ज करेंगे। तो इस समय जो है हम लोग टोटल मतलब कि लीन स्टार्टअप हम लोग कर रहे हैं। लीन स्टार्टअप हम लोग मतलब कि अपने ऊपर कोई भी बर्डन आने ही नहीं देंगे पैसा को लेकर। जो भी होगा इन सिस्टम से जो भी पैसा जनरेट होगा उसी से हम लोग इसको ऑपरेशनल बनाएंगे। अब ये नहीं कि हम अपने पैकेट से पैसा पकड़ से पैसा डाल रहे हैं और प्रोजेक्ट फेल हो गया तो हम लोग का दिवालिया निकल गया। लेकिन तो डेवलपमेंट के लिए, लेकिन जो है वो अपनी रिसोर्स को डेवलपमेंट के लिए बाकी जो कंट्रीब्यूट करेंगे उसके हिसाब से उनको पे करेंगे, राइट, बाद में। लेकिन वो तो हाँ, बाद में होगा ना, जब ये होगा। तो उसके पहले लोग कैसे करेंगे कंट्रीब्यूट? नहीं वही तो है ना, जो भी आप कंट्रीब्यूशन करेंगे ना आपको एक टोकन क्रिएट कर तो दिया कहने नहीं जाएगा। है कि मतलब अगर देखा जाए तो, अगर कोई भी अगर सोचेगा, ठीक है, डेवलपर, कि अगर सक्सेस होता है तभी तो इसको फंड मिलेगा, अगर हम्म, सक्सेस नहीं होता तो फिर वो इसका एफर्ट फेल गया ना, अगर ऐसा सोचेगा लोग, तो यही तो है, राइट। यही तो रिस्क आपको लेना है। यही यही तो रिस्क रिस्क लेना है। लेना है ना, यही तो ऑनरशिप आपको लेना है। अगर मान लीजिए कि अगर हो सकता है कि आपको करोड़ों रुपया मिल सकता है 2 साल बाद, 5 साल बाद, हो सकता है कि आपका 0 रुपया मिलेगा, लेकिन हम आपके पैकेट से पैसा नहीं ले रहे हैं। आप इस टेक्नोलॉजी इस प्रोजेक्ट पे आओगे तो आप प्राउडली इसको मेंशन करोगे कि आई एम ओपन कंट्रीब्यूटर इन दिस प्रोजेक्ट मेटा हॉस्पिटल, मैंने इसमें ये चीज किया है। आपका एक तो प्रोजेक्ट बन रहा है और वो प्रोजेक्ट आपका लाइव रहेगा, इंटरव्यूअर भी जाके ऑनलाइन चेक करेगा कि हाँ ऐसा मेटा हॉस्पिटल है क्या। लोग पैसा पेड कर के प्रोजेक्ट सीखते हैं करने के लिए। हम लोग आपको फ्री में जो भी रिक्वायरमेंट है हम आपको देंगे। हम लोग फ्री में आपको जो भी ट्रेनिंग इवन पॉसिबल है हम आपको देंगे। अच्छा, ट्रेनिंग कैसे दोगे? ट्रेनिंग का क्या है मतलब? ट्रेनिंग क्या है, जिसमें मान लिया कि जो भी रिसोर्स रिक्वायरमेंट है, जैसे मान लिया कि नया नया कोई जस्ट पास आउट स्टूडेंट है, हम लोग को ज्वाइन करना चाहता है, उसको गिफ्ट गिफ्ट के बारे में मालूम है नहीं,
उसको लेक्चर देंगे, उसके बारे में अच्छा। कुछ रिसोर्सेज पढ़ाएंगे। जैसे मान लें हमको रिएक्ट डेवलपर चाहिए, रिएक्ट डेवलपर में नहीं है, अच्छा उस लेवल का नहीं है, क्योंकि हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको ब्लॉकचेन का कंसेप्ट मालूम है। जो भी जितना भी बैकएंड में हम लोग करेंगे ब्लॉकचेन से, लेकिन फ्रंट एंड उसको सिक्योर करने के लिए ब्लॉकचेन इस्तेमाल कर रहे हैं। और मान लें कि आपको उसका नॉलेज नहीं है, तो हम उसको आपको सिखाएंगे। हम तो ब्लॉक। मेरा ऐसा है कि मैं अभी मतलब मैं ब्लॉकचेन में भी मैंने एक दो प्रोजेक्ट किए हैं, और ये एनटी क्या बोलते हैं, एनएफटी। तो एनएफटी का भी मेरे को मतलब वर्किंग नॉलेज नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट पता है कहाँ पे उसको है यूज कर सकते हैं। लेकिन मतलब ये वाला सिस्टम में एनएफटी और ब्लॉकचेन का यूज बस आईडी जनरेट करने के लिए और सिक्योरिटी के लिए करेंगे, या फिर ट्रांजैक्शन के लिए भी करेंगे? जब ट्रांजैक्शन मतलब कि अगर कुछ भी चीज आता है देखिए, चेंजेस, अगर तो वो उसके लिए ब्लॉकचेन यूज करना है तो फिर वो ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा सिस्टम पे, क्योंकि आप जनरेट कर रहे हैं फाइल्स, ठीक है? तो फाइल्स आप मतलब हर ट्रांजैक्शन के लिए अगर करना है तो ब्लॉकचेन पे ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा मेरे हाँ हिसाब से तो, हाँ, आप जो है बोल रहे ना? हैं तो सही है, अगर लेकिन नॉर्मल, हाँ, लेकिन हाँ, हमको ना, हम देखिए, हम ऑलरेडी एज ए डेवलपर में हम पॉलीगन के साथ काम किए हुए हैं, ठीक ना। पॉलीगॉन यूज किया, अच्छा। हाँ, हाँ। आप शायद देखा होगा उसका टी शर्ट एकदम पहने हुए हैं। तो हमेशा हमको गिटेंड में मिलता रहता है। तो क्या है कि उन्होंने इंडिया में इंडिजीनियसली ब्लॉकचेन डिस्क्रिप्टिव सिस्टम उसने डेवलप किया हुआ है। हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। अभी हम लोग के हैवी मतलब कंसेशन मिलता है कि उसको अगर कोई प्रोडक्ट अगर डेवलप कर, देखिए ब्लॉकचेन क्या होता है भाई, देखो सिंपल से बात है कि मल्टीपल तुम्हारा जैसे में ऑथेंटिकेटर आ जाएंगे, कि जो भी ये जो क्रिएट हुआ, जो भी ये जो आ रहा है डाटा जो यहाँ से आ रहा है, ये ऑथेंटिक है कि नहीं, कोई इसको टेम्पर नहीं ना किया। इसके लिए मान लिया कि बहुत सारा, मान लो कि यहाँ पे आदमी है। नहीं नहीं, मैं मेरे को आइडिया है उसका, मैं आइडिया है ब्लॉकचेन ना। मेरे को पता है। हाँ, मैं क्या तो बोल मान रहा लो हूँ कि कि अगर आप ट्रांजेक्शन मतलब अगर आप एपीआई लेवल पे ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हो, मतलब कि सपोज अगर मैं पेशेंट हूँ, ठीक है ना, मेरे को सिस्टम एक्सेस करना है, तो फिर मैं एक एंड पॉइंट कॉल होगा, ठीक है? तो फिर मेरा सिस्टम में लॉगिन जाएगा, मतलब कि मैंने लॉगिन किया है, तो फिर मैं किसी डॉक्टर को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट किया तो ये मेरे अकाउंट में इसका नोट होगा ना कि मैंने ये डॉक्टर को सिलेक्ट किया हाँ, है ना? तो तो फिर नहीं ये तो, अगर डेटा फिर हिस्ट्री ब्लॉकचेन आप मतलब कैसे बेसिकली निकालोगे। डेटाबेस चाहिए। हाँ, तो अजीब हाँ सी बात है। हाँ हाँ। अगर हिस्ट्री को हाँ, आप, तो अच्छा, अगर आप ये भी चीज आप ब्लॉकचेन पे डाल रहे हो क्या, मतलब ये बोल रहा हूँ मैं, हाँ कि मैंने ये, अच्छा। देखिए, अब ये नहीं कि हम मान लीजिए कि इतना जीबी का फाइल है, उसको भी हम ले आके ब्लॉकचेन वाला सर्वर पर जाकर अपलोड करें, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, वो हम, तो हो ही पाएगा, हाँ, उतना नहीं हो पा, वो आप किसी मतलब फाइल को आपकी कोई सर्वर पे स्टोर करोगे, उसका हम लिंक लोग क्या डालोगे कर रहे वहाँ हैं पे। ना कि हर एक ट्रांजेक्शन का आईडी, मतलब कि आप गिट के बारे में बेसिक जानते हो ना। वो क्या करता है, हर एक चेंजेस का क्या करता है, रिकॉर्ड रखता है ना। जैसे में हम लोग जब भी हम गिट गिट लैब में हम जाते हैं, हम लोग गिट पे पहले क्या करते हैं, कमिट करते हैं, उसके बाद से हम लोग पुश करते हैं। तो हर एक कमिट हमारा क्या होता है, हेलो, एम आई ऑडिबल। हाँ 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 अब हाँ तो भाई। हर एक कमिट हमारा गिट में क्या होता है कि स्टोर होता है, क्या चेंजेस किया, किस लाइन में क्या चेंजेस किया, कौन आदमी ने चेंज किया, क्या मैसेज था। नहीं नहीं, वो ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन ब्लॉकचेन का अगर आप इसके लिए यूज करोगे तो मेरे को लग रहा है मतलब मेरे सबसे ज्यादा ही हो जाएगा। अगर आप बस आईडी जनरेट करने के लिए और सिक्योरिटी के लिए यूज करोगे तो उसका होगा, लेकिन वो कैसा करोगे वो मेरे को मतलब क्लियर नहीं है अभी। हाँ, तो हमने अगर थोड़ा आप, सा ब्रीफ आइडिया हाँ, हमने बताया था ना, कैसे हम लोग करने वाले हैं। देखो, सिक्योरिटी के लिए और आईडी जनरेशन के लिए तो ब्लॉकचेन इस्तेमाल करने का। और ब्लॉकचेन मतलब क्या आप समझ रहे हैं इससे, हम लोग बस तो यही मैं ये देखेंगे। समझ रहा हूँ कि मतलब अगर पेशेंट ने, मैंने एक एग्जांपल हम्म, तो पेशेंट ने एक डॉक्टर को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? हम्म, तो उसका एंट्री उसके अकाउंट में जाएगा, ठीक है, कि ये एक्स पेशेंट ने वाई डॉक्टर को सिलेक्ट किया है, ठीक है? हम्म, और फिर बाद उसके बाद में फिर डॉक्टर ने भी हाँ बोल दिया कि ठीक है मैं अवेलेबल हूँ इस टाइम पे, ठीक है? तो उसका भी एंट्री आएगा उस हम्म, अकाउंट में, ठीक है? हम्म। तो डॉक्टर के भी अकाउंट में जाएगा और पेशेंट के भी अकाउंट में नहीं आएगा उसका एंट्री, ठीक नहीं है? नहीं, हम लोग जो ब्लॉकचेन को हम लोग जो इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, वो सब कुछ मतलब कि सेशन कंप्लीट होने के बाद से उसको हम जाके इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि हमको रिकॉर्ड चाहिए, हमको हिस्ट्री का। ब्लॉकचेन हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना, एक तो बात है, सबसे पहले हम लोग डॉक्यूमेंट को सिक्योर करने के लिए, है ना। दूसरा है कि हम लोग हिस्ट्री जो है उसको स्टोर करने के लिए, क्योंकि
मान लो कि क्या होगा ना कि मान लो कि हमने अपना कोई 10वां अपॉइंटमेंट किसी डॉक्टर के साथ बुक किया और वो इंटर रिलेटेड है कुछ ही, मान लीजिए कि पहले हम जो मान लीजिए कोई लेडीज को प्रेगनेंसी इशू था, हाँ? और प्रेगनेंसी इशू था तो उसने किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया था। अभी उसको क्या हुआ कि मान लीजिए उसका पाँव टूट गया, आज कुछ हैंड फ्रैक्चर हो गया, तो अभी किसी डॉक्टर के पास, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाएगी। अब वो देखना चाहता है ना कि क्या क्या पहले से इसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया हुआ है, क्योंकि पेशेंट के पास तो कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर फिजिकल डॉक्यूमेंट होता तो उसके पास भेजने के लिए उसका माथा पच्ची हो जाता ना। तो अगर इसके पास हिस्ट्री रहेगा तो ये हमारा पेशेंट से हमारा क्या कर लेगा, उस चैन के थ्रू ट्रैक कर लेगा कि किस डॉक्टर से क्या इशू इसको फेस हुआ था, इसे अप्रूवल लेके देख सकता है। तो इसलिए हमको ब्लॉक चेन इस्तेमाल कर रहे हैं। और ब्लॉक चेन इसलिए नहीं कि कोई इसको टेम्पर कर दे, कोई टेम्पर कर दे बीच में से कुछ और कुछ ऐड कर दे, कुछ गलत कर दे, हैं? ऐसा ना हो, इसलिए हमको सिक्योरिटी के लिए इसको भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है जब एनएफटी के रूप में। ओके ओके। ये देखिए बहुत एडवांस प्रोडक्ट है ये, ऐसा है वेब 3.2 पर बेस्ड है, ठीक ना। सो हम लोग वर्क कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे। हम लोग ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। अगर आप देखिए हम लोग को प्रोडक्ट बनाना है फॉर वर्ल्ड, नॉट जस्ट फॉर ओनली इंडिया। अगर किसी को भी अब किसी दूसरे डॉक्टर, अभी मान लो किसी को भी मीटिंग करना होता है तो जूम ही फर्स्ट याद आता है, ठीक है, बहुत सारा गूगल मीट आ गया, ऐसे आ गया। तो हम लोग एज ए डॉक्टर के साथ हम लोग बात करके उसके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करके क्या क्या इश्यू आता है ऑनलाइन, उसको हम लोग ने बहुत सारा लिस्ट हमने आउट किया हुआ है। कि क्या होता है कि कोई 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 आदमी होता है क्या करता है कि रिपोर्ट भेज देता है, और रिपोर्ट का फॉर्मेट है मतलब ऐसा रहता है ना कि कहाँ पे कौन पर्टिकुलर कितना होमोग्लोबिन है, कितना क्या है, ऐसे ऐसे फॉर्मेट में लिख के भेज देता है लोग कि पता ही नहीं चलता ट्रैक करने में। उसको बैठ के पढ़ना पड़ जाएगा। ऐसे प्रॉपर फॉर्मेट में, डिजिटल फॉर्मेट में रहेगा, पापा पूरा करके आएगा, पूरा सब कुछ डॉक्यूमेंट, मतलब कि तुम उसका फिल्टर आउट कर सकते हो। और होमोग्लोबिन देखना चाहते हो वो देख सकते हो, थायराइड लेवल देखना चाहते हो वो देख सकते हो विद इन काफी अ। चैलेंजेस है हाँ, काफी चैलेंजेस होंगे इसमें अब देखो कि चैलेंजेस अपना। अगर नहीं रहेगा तो फिर मजा क्या उससे प्रोजेक्ट करने का। ठीक। हाँ मतलब वही वो तो है लेकिन क्योंकि स्टैंडर्डाइज नहीं है लोकल हॉस्पिटल में हाँ तो वही तो कोई हम लोग कुछ चीज क्या स्टैंडर्डाइज कर रहे करने के हैं। लिए आ रहे हैं। यही तो हम अब देखो हमने स्टार्टिंग कहाँ से किया था कि अगर प्रॉब्लम है तो अपॉर्चुनिटी है। ये ऑनलाइन के लिए स्टैंडर्डाइज तो नहीं अभी है। कुछ इसका अल्टरनेटिव है मतलब हाँ बहुत सारा कुछ है। अल्टरनेटिव, लोग तो डायरेक्टली व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल, स्काइप कॉल से कनेक्ट कर लेते हैं। छोटा छोटा जो बड़ा बड़ा जो मतलब कि क्या है हॉस्पिटल है, जैसे बैप्टिस्ट हो गया। नहीं मतलब स्टार्टअप कुछ है इस फील्ड में सेम काम कर रहे हैं। हाँ बहुत सारा स्टार्टअप सब लोग देखिए। आप ऐसा मत सोचिए कि हम ही मतलब यूनिक हैं। हर एक चीज का कहीं ना कहीं अल्टरनेट सॉल्यूशन होता है। अब ये है कि आप कितना अच्छा से उसको ऑपरेशनल बना सकते हैं, कन्वीनियंट टू यूज कर सकते हैं, और कॉस्ट राइट इफेक्टिवली राइट। बना सकते हैं। अब देखिए हम लोग जो मतलब हम लोग का ये नहीं है कि हम हॉस्पिटल को जाकर खत्म कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, वैसे हमारा कोई अथी नहीं है। हमारा है कि हम और उसको थोड़ा पेशेंट के लिए, डॉक्टर के लिए और थोड़ा उसको इजीली कर सकते हैं। सही है आइडिया सही है अच्छा है काफी अच्छा है। तो अगर इंटरेस्टेड हो गए तो हम प्रोजेक्ट का रिपोजिटरी शेयर करेंगे। आप इंटरेस्टेड स्टेक बता दीजिए किस फील्ड में क्या क्या किस पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसी से तो रिलेटेड कहाँ बात। तक पहुंचा डेवलपमेंट कौन से मॉडल तक हुआ है स्टार्ट हुआ है। अभी जस्ट स्टार्ट ही किया अभी तो। अभी हमने इंस्टेंस कुछ बनाया है AWS पे अभी लाइव करने के लिए। अभी तो अंडर मेंटेनेंस डाले हुए हैं। अभी जो आप यूआई चेक करोगे तो अभी कोई सिक्योरिटी विक्योरिटी नहीं लगाए हैं, जैसे 1 मंथ सब लगाना है। तो अभी जस्ट हम लोग POC कर रहे थे, प्रूव ऑफ कंसेप्ट कर रहे थे हाँ हाँ। विथ इन्वेस्ट क्या करता है इन्वेस्टर लोग से भी बात किए बैठ के, 2 4 इन्वेस्टरों से बात की, तुम लोगों ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया, प्लस इस सिस्टम को ऑलरेडी 5 6 लोग इस्तेमाल किए, है ना। अभी उसको फिर से हमने रीस्ट्रक्चर कर दिया ना प्रोजेक्ट को, इसलिए हम उसको मेरे फैमिली मेंबर वाले ही इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। तो हमें बहुत अच्छा अच्छा से मालूम है, सेटिस्फेक्शन भी है, और डॉक्टर पेशेंट दोनों के लिए अच्छा है।
ठीक है, मैं बताता हूँ सोच कर। अच्छा, आप कौन से स्टेक में काम कर रहे हैं? मेरा टेक जावास्क्रिप्ट का ही है, नोड और रिएक्ट अच्छा, सो ब्लॉकचेन और आपने किससे इलास्टिक किया था? सर्च। नोड इस्तेमाल किए थे? ब्लॉकचेन में मैं मतलब सीखा हूँ ब्लॉकचेन, अच्छा, और एक दो प्रोजेक्ट बनाए था जो नहीं, बेसिक बेसिक। हमको यूआई जीआई इस्तेमाल करके नहीं करना है, हमको प्रॉपर कोड सर असेंबली सर ऑटोनोमस सिस्टम बनाना है, फ्रजाइल यूजिंग द व्हाट कॉल माइक्रो सर्विसेज। समझा नहीं, मतलब क्या बोल रहे हो? हमको मतलब मोनोलिथिक डिजाइन नहीं फॉलो करना है। नहीं नहीं, मोनोलिथिक तो अभी होगा ही नहीं वो, क्योंकि इसका अभी अगर मोनोलिथिक करेंगे तो बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, माइक्रो सर्विसेज यूज करना ही पड़ेगा इसमें। हाँ हाँ, हाँ, तो यही है। माइक्रो सर्विसेज पे भी काम किया है, मतलब अब मेरा अभी माइक्रो सर्विसेज पे भी काम चल रहा है करंट कंपनी में, तो उसका आइडिया तो है। देखो भाई, आई एम किंग ऑफ नथिंग बट जैकेल ऑफ एवरीथिंग। ठीक ना? तो हम भी डॉकर इंजन पे काम किया, कुबरनेटिस पे काम किया, हाइबरनेट पे किया, बहुत सारे चीजों पे काम किया। इवन हमने कुछ पास्ट में कुछ एंड्रॉइड अच्छा। प्रोजेक्ट भी डिलीवर किया। तो हम्म। अभी हम फुल स्टैक डेवलपर के रूप में मेनली हम जावा स्प्रिंग बोट इस्तेमाल करते हैं बैकएंड के लिए, फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अच्छा, सही है। देखिए तो आपके आप, साथ मतलब, हाँ मतलब जो प्रोजेक्ट में आपके साथ जो है फाउंडर्स, उसका कुछ इंफॉर्मेशन। देखिए फाउंडर्स, मैं ऑलरेडी अपना कंपनी रन कर रहा हूँ। आज ये प्रोजेक्ट है ना, ये एज ए मतलब कि कंपनी का एक सब डिवीजन बना रहे हैं। ठीक ना? अच्छा आज इसको हमने ये सब पूल पहले से क्रिएट किया हुआ है, जो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे वो लोग उसका भागीदार होंगे। आप लिंक्डइन पे आप सर्च करके देखिएगा डीएनपी पंकज कुमार। अच्छा, गूगल पे आप बहुत सारा आर्टिकल मिल जाएगा। अभी लेकिन हम मून लाइटिंग करते हैं, मजबूरी है, क्योंकि स्टार्टअप में क्या है ना कि जब तक आपके पास पैसा नहीं आता है ना, स्ट्रगल पीरियड आप फेस करते रहोगे। तो पैसा कमाने के लिए तो कुछ तो राइट एक्स्ट्रा राइट काम करना पड़ेगा ना। तो पैसा कमाने के लिए राइट हम राइट। अपने स्किल को सेल करते हैं, और पार्ट टाइम में हम अपना एंटरप्रेन्योरशिप वाला डेवलपमेंट करते हैं। और इसमें इशू ना आ जाए इसलिए हमने इसको ओपन प्रोजेक्ट कर दिया है, पब्लिक कंट्रीब्यूटर। तो हमारे करंट कंपनी से कोई इशू भी नहीं आएगा, क्योंकि भाई ओपन प्रोजेक्ट है, कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, हमारा कंट्रोल नहीं देता है ना। तो, अच्छा, तो तो हम जावा। लोग जावा स्प्रिंग बोट इस्तेमाल करेंगे बैकएंड के लिए, और फ्रंट एंड के लिए हम लोग कोशिश करेंगे रिएक्ट इस्तेमाल करें। अच्छा, देखिए हम जावा में लोग, मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, नोड में है। नोड। देखिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, देखिए कॉन्सेप्ट क्या है ना कि हम लोग एक दूसरे से सीखने वाले हैं, लर्न करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि कुछ गलत हो जाए तो कोई आपको पनिशमेंट दे देगा, है ना? हम लोग अपना गलती से नहीं नहीं, सीखेंगे वैसी आप। बात नहीं है। वैसी बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, वो हाँ, तो है। देखिए अभी अभी देखिए एज ए डेवलपर, आप भी सीनियर डेवलपर हो, हम भी सीनियर आप। अभी तो डेवलपमेंट ही चल रहा है, बाकी तो कुछ नहीं। वही मैं सोच रहा था कुछ ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, लेकिन कुछ कहाँ पे करें कहाँ पे नहीं, अभी टाइम देखिए भी नहीं मिल रहा है अभी। आप देखो, अगर आप विदेशी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करोगे, आपका नाम भी बस थोड़ा सा रहेगा, वो भी सर्च करने में मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पे आपको हिस्सेदारी भी देंगे, आपके जो कंट्रीब्यूट किया है ना। तो एक ऑनर, मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे मतलब फालतू फालतू का प्रोजेक्ट देखते हैं कि मतलब साला क्या करोड़ों का हो जाता है बिजनेस है। ये हमारा इतना यूज हाँ, केसेस का बहुत ज्यादा है। हम लोग ऑब्वियसली बात है कि हम लोग इसको अगर टेक्नोलॉजिकल अच्छा से तब तक है। अभी क्या है ना कि अगर आप टेक्नोलॉजी को अच्छा से इम्प्लीमेंट कर दीजिएगा ना, आप एक आपका प्रोजेक्ट। इसमें बस टेक्नोलॉजी ही नहीं है, आप अगर देखोगे तो आपको पता ही है, मतलब इसमें बस टेक्नोलॉजी ही नहीं है। एक सिस्टम बना दिया वो ठीक है, लेकिन उसके लिए यूज करने के लिए आपको हम मैनेजमेंट पहले चाहिए तो उसके लिए। डॉक्टर्स, हाँ, हाँ डॉक्टर्स आपको पहले ऑनबोर्ड करना पड़ेगा सारे उनको। और जो आप बोले कि है ये नर्स वगैरह, तो लोकली उसका आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। वो एक्चुअली बड़ा टास्क है, ये सिस्टम तो बन जाएगा, वो बहुत ईजी है। कुछ नहीं देखिए है। हम लोग क्या करते हैं, हमने हमने पहले ही से ना स्टूडेंट हब नाम से एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, राजीव इलेक्ट्रॉनिक्स का, है ना।
हर अच्छा। एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, इवन आप पिन कोड वाइज आप बोल दोगे कि हमारा एक गांव में, एक विलेज में हम लोग ब्यूरोक्रेसी के लिए टाइप का काम कर रहे हैं। अभी आपको इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। हम लोग कॉलेज में बनाए थे स्टूडेंट हॉक करके वेबसाइट, ठीक है। अगर क्या था ना कि जैसे हाँ। बहुत लोग शादी ब्याह करते हैं ना। अभी आप इतना फन फन हम लोग प्रोजेक्ट किए हुए हैं और उससे अच्छा पैसा हम लोग कमाए हुए हैं, आपको बताते हैं। जैसे मान लें किसी लड़की का किसी लड़के के साथ मतलब शादी लगा और उसके लड़की वाले लोग जानते नहीं है उस लड़के का, उसने बोला है कि हम यहाँ पे काम करते हैं, इतना लाख रुपया महीना कमाते हैं, इतना हजार रुपया कमा रहे हैं। अब वो सही है कि गलत है, कैसे वो लोग करते थे पता नहीं, वो पता था। तो वो लोग हम लोग का देता था कि इसका लड़का का रिज्यूम है, यहाँ पे रहता है, यहाँ पे काम करता है। हम लोग अपना नेटवर्क में किसी से बात करते कनेक्ट होते थे कि जो उस एरिया में रहता था, वो जाके मिलता था, बात उत करता था, सब डिटेल लेके बताता था जो कह रहा है सही है कि नहीं है। अब मतलब कि अच्छा। एनोनिमसली भी कोई लोग बोलते थे कि जांच करके आओ, तो बिना मिले हुए ही बैकग्राउंड में चेक करके आ जाता था। एक किसी का मतलब 5-5 हजार 10-10 हजार रुपया लेते था वो। तो वो सब कुछ है हमारे पास, हर एक सिस्टम। अच्छा। अभी आपको बताते हैं, जब कॉलेज पीरियड में ही थे ना, हम लोग इंस्टाग्राम से है ना लाखों रुपए मतलब कमाए थे। क्या कर देते थे कि अभी अभी क्या है ना कि अभी लोग लाइक फॉलो के लिए ना ऑब्सेसिव है। अगर हम राइट। अगर 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 आप सोशल मीडिया फोन हो, अगर बहुत लोग ट्राई कोशिश कर रहे हैं फॉलोवर बढ़ाने के लिए, नहीं बढ़ रहा, आप उसे जाकर बोला कि देखो हमको 1000 रुपया दो, आपको 5000 कर देंगे फॉलोवर, वो रेडी हो जाएगा। हमने क्या किया, बहुत सारा ग्रुप बनाया हुआ है भाई, तुम लोग का मोबाइल का रिचार्ज कर देते हैं, हमारे गांव के सबको पूरी दोस्त थे उन लोगों ने, ठीक ना। सही है, सही है। तो उन लोग का गांव में तो प्रोफाइल ज्यादा काम नहीं रहता है। है। करो। लोगों के पास काम नहीं रहता गांव में, तो हाँ बस वो उन मोबाइल लोग पे का लगे काम रहते है, हैं। हाँ, उन सही है। लोग का मोबाइल रिचार्ज 200-300 रुपया का महीना में कर दिया जाता है। पर्टिकुलर आदमी का लाइक करो, फॉलो करो, उसका सब्सक्राइब करो, इस टाइप से सिस्टम चलता है। तो इनकम का बहुत स्रोत है, बस टेक्नोलॉजी आना चाहिए। अभी सोच रहे हैं कि मतलब कुछ नाम हो यार, कुछ डेवलपमेंट कैसा करना है, ठीक ना। तो ये सही सब है। है। आप अपना कांटेक्ट शेयर कर देना, ठीक ना। हम लोग फिर से ठीक है, कनेक्ट हो ठीक गया है, हाँ, तो चलेगा। आर्किटेक्चरल लेवल पर हम लोग समझेंगे प्रोजेक्ट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये जावा में बनाएंगे, जावा में बनाने का टेक्निकल नहीं स्टैक है। देखिए, हमारा क्या है ना प्रोजेक्ट, हमारा क्या है, एजिलिटी बहुत हाई है प्रोजेक्ट का रखना। आप चाहते हो कि हम कोई प्रोजेक्ट हम नोड में डेवलप करना चाह रहे हैं, आप कर सकते हो, क्योंकि हम लोग कंटेनराइजेशन इस्तेमाल कर रहे हैं ना। नहीं हाँ, समझ रहे हैं? राइट। जैसे मान लो कि कोई चाहता है कि नहीं, कोई चाहता है हम 16 का घर बनाएंगे, कोई चाहता है हम फूस का बनाएंगे, कोई चाहता है हम ईंट का बनाएंगे, कोई चाहता है नहीं हम पत्थर का बनाएंगे। ये इंटरफेस हो गया उसका, जो लैंग्वेज हो गया, क्या हुआ, टेक्नोलॉजी हाँ, हो हाँ। गया। अब देखो, अब उस घर में कौन आदमी रह रहा है उससे क्या मतलब है। हमारे हम उस घर पर लेके जाएंगे, एक लेटर देंगे कि हाँ ये लेटर करो, उसके रिस्पॉन्स में उसने कुछ रिस्पॉन्स किया, वो हमको पैसा दिया, अच्छा हमको कुछ खाना दिया, तो क्या हो गया, सर्विसेज हो गया। समझ रहे हैं ना। बराबर। मतलब आप नोड से उस मॉड्यूल को डिजाइन करो, प्रॉब्लम नहीं। हम उसका कंटेनर बना देंगे, एक इमेज बना देंगे, उसको अपलोड कर देंगे, उसके बाद से तो बाकी सब तो पॉड हैंडल करेगा। कोई भी रिक्वेस्ट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं बराबर। तो जाके उसे हैंडल करेगा, उसे बोलेगा कि हमको ये दो भाई, हमको ये इंफॉर्मेशन दो, ये यूजर का एक्सेस दो, वो निकाल के दे देगा। इसमें लैंग्वेज का क्या लेना देना है। हाँ? सही है, सही है। देखिए, हाँ देखिए पंकज, आप हम इसका गारंटी नहीं देते हैं कि आप कितना पैसा कमाओगे, लेकिन हम इतना गारंटी देते हैं ना कि अगर इस प्रोजेक्ट पर आप काम करोगे ना, अगर सक्सेस हो जाएगा ना ये प्रोजेक्ट, पैसे, करोड़पति इसका तो पैसा का बनेगा। बात नहीं है भाई, पैसा का बात नहीं है, वो इसका बात है कि आप टाइम कितना देते हो ना, हाँ, और क्योंकि कितना वही वही ज्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ टाइम आप सीखने दे को रहे हो। मिलेगा। हाँ। टाइम टाइम का वैल्यू ना, अभी अभी स्टेज पे तो आपको भी पता है। टाइम, राइट। अच्छा आप अपना टाइम पैसा। कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, सीखने में ही नहीं इस्तेमाल करते। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट करे तो सीख हाँ, ही रहे हो। स्केलर में आपको टाइम, स्केलर आपको तो पता ही है, स्केलर का भी कैसा है, आप तो काम भी करते हो स्केलर में, तो मतलब
ये लेक्चर्स हो गया, ठीक है, उसको फिर आपको नोट्स बनाना पड़ता है, तो उसमें ज़्यादा टाइम चला जाता है मेरा। मेरा नोट्स बन नहीं पा रहा है अभी, बहुत सारा बैकलॉग चल रहा है ये अरे काम की देखो वजह यार, से। देखो नोट्स बनाने का सबसे शॉर्टकट तरीका है ना, जो टीचर ने नोट्स बनाया है ना, उसको डाउनलोड करो, है ना। नहीं, उसको मॉडिफाई करना पड़ता है, क्योंकि वो नहीं नहीं, वही तो आपको बता तो रहे पता हैं, है, अभी जो उसको अभी जो डाउनलोड अपने, करो, उसके बाद से हाँ उससे फिल्टर आउट करके फिर अपना बनाओ। ये नहीं कि उसका पूरा छाप हाँ लेना वही। जो जो बोल रहा है, शॉर्टकट में उसका। नहीं, हाँ, हाँ ये राइट है, इम्पोर्टेंट। अपने को जैसे, भी बहुत ज़्यादा ऐड करना पड़ता है उसमें, अपने टेक्निक थोड़ा बहुत, हाँ नोट्स वगैरह, ऑब्जर्वेशन एक्स्ट्रा। जैसे मान लिया कि कोई विंडो टेक्निक से बताया, अब एक ही क्वेश्चन कराया है आदमी वहां पे, आपको कुछ और खोज के, देखो ऐसा नहीं करो। जो भी करना है, नोट्स जो भी बनाना है ना, आप फिजिकल कॉपी पर मत बनाओ, आप गूगल का डॉक इस्तेमाल करो। क्योंकि क्या है ना, डॉक इस्तेमाल करोगे तो कहीं पे आर्टिकल पढ़ा है उसका कॉपी करो, लिया के पेस्ट कर दो, कहीं पे वीडियो पढ़ा है उसका वीडियो का लिंक लिया के पेस्ट कर दो। अब जब पढ़ रहे हो समझ में नहीं आ रहा, वीडियो के लिंक पे क्लिक करो, वहां वीडियो पे चले जाओगे, ठीक ना। प्रॉब्लम जो की है हाँ ये उसका उसका लिंक यहाँ पर रख दो, प्लस उसका जो कंसेप्ट बिल्डिंग है उसको तुम टाइप करके लिख भी सकते हो, इमेज लगा सकते हो उसका कोड का। राइट राइट। मैं फिजिकली कर रहा हूँ, मैं ये ऑनलाइन करने का सोचा था, मैं किया भी था, लेकिन उसमें नहीं काफी तो मतलब टाइपिंग करने में, हाँ, दिक्कत आता है उसमें। हम लोग कोलैबोरेट करके बना देंगे यार। ऑनलाइन क्या करते हैं ना, ड्राइव बना देते हैं, उसमें हर एक को किसी को दे देंगे, भाई तुम इस टॉपिक पे बनाओ, तुम इस टॉपिक पे बनाओ, और हो जाएगा हाँ एक दिन में हम लोग। देखिए प्रॉब्लम हमको मिलता है ना, तो हमको मतलब खुशी होता है कि चलो कुछ करने का मिला। तो अच्छा। हम अभी हम प्रेजेंटेशन बनाए थे, हम जानबूझ के हम प्रेजेंटेशन को नहीं दिखाए कि अभी मालूम नहीं है कौन लोग के इंटरेस्ट है, पर इतना लोग में हमारा एक ही इफेक्टिव पर्सन मिला जो कि आप, बाकी सब लोग सुनसान के चले गए। हाँ, मेरे होता को तो है स्टार्टिंग में समझा नहीं था प्रॉब्लम। हाँ नहीं, अभी होता है स्टार्टिंग पे से, सही है। स्टार्टिंग में, अभी आपको लोग रिकॉग्नाइज नहीं ना करेंगे, जब तक आप रिकॉग्निशन पाओगे तब तक ले नहीं हो आपको फॉलो करेंगे। अच्छा आपका बात होता है, अब बाद में लोग एडमायर करने लग जाएंगे, अगर हम लोग काफी अच्छा अगर कर लेंगे, अरे यार वो तो दोस्त था, वो तो हमारे साथ पढ़ता था, ऐसा था वैसा था। लेकिन अभी कोई वैल्यू नहीं देंगे, नेचर है। वही है। ठीक है, फिर बताता हूँ आपको मैं, ठीक है, और एक कांटेक्ट तो दिन, है। हाँ एक दिन हम्म। अलग आप मैसेज कीजिएगा, हम लोग आर्किटेक्चरल लेवल पर बैठ के डिसाइड करेंगे। हाँ वही, मतलब अभी उस पे आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सर्विसेज में हाँ मतलब करना पड़ेगा। आपको तो पूरा आइडिया मैंने बता दिया ना, आप भी थोड़ा एक अपने साइड से आर्किटेक्चर हमको प्रेजेंट करो अपने लेवल पर, मतलब कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए इस प्रोजेक्ट। हम लोग अपना प्रेजेंट ठीक करेंगे है। और एक दूसरे से डिस्कस कि इसका मेरिट क्या है, इसका डिमेरिट क्या है ना। राइट देखिए राइट, कर हर सकते एक हैं। किसी का एक ऑनरशिप होना चाहिए ना, ऐसा नहीं है कि भाई हम इनिशिएट हैं तो भाई हाँ, हम मैं इस्तेमाल। वही एक्चुअली मैं वही सोच रहा था कि अगर आप अकेले हो, ठीक है, अगर आप प्रोजेक्ट में अकेले हो, तो फिर क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें आपको डेवलपमेंट के लिए ही 3-4 लोग अच्छे लगेंगे। एक तो बेसिक आर्किटेक्चर लेवल पे, और फिर 2-3 एक फ्रंट एंड और बैक एंड भी कंसिडर किया, या फिर एक ही बंदा फुल स्टैक। अरे तो यार वो देखो, एटलीस्ट कांस्टेंट होना चाहिए, ऐसा मेरे को मतलब लगता है, अगर आप ओपन सोर्स बोल रहे हो ना, लेकिन उसको हैंडल करने के लिए भी एक बंदा चाहिए ना। ओपन सोर्स आप बोल रहे हो, बहुत हाँ सारे लोग ओपन सोर्स जो करेंगे। लोग भी ब्रांचेस हाँ पुश किए हैं उसको वेरीफाई करना है कि हाँ, सही से काम कर रहा है उसको कि नहीं, वो उसके ऐड बाद से ऐड मर्ज करने के करो। लिए। हाँ करेक्ट। तो उसके लिए आपको एक बंदा तो रखने मतलब चाहिए ही चाहिए। फुल स्टैक डेवलपर बोल दो आप, एक या फिर दो दो तो चाहिए, लेकिन आप एक ही पर कर सकते हो अभी के लिए, है ना। तो एटलीस्ट ये कांस्टेंट तो चाहिए, अदरवाइज फिर आपको इतने सारी रिक्वेस्ट आएंगी ओपन सोर्स पे, किसको क्या ऐड करना है, किसको रिजेक्ट करना है, वो भी एक काम ही है। और वो उसी बंदे को आना चाहिए जो कि जिसको सब पता है, क्या सिस्टम है क्या नहीं है। तो देखिए मैं हम इसलिए लोग ना, पूरा टीम का, देखिए हाँ, टीम का बारे में अब बोल देखिए पूछ रहा क्या है था। ना कि हम लोग लाइबिलिटी अपने ऊपर नहीं रख रहे हैं। सिंपल सा मेरा मॉडल है ये, अगर हम 2 रुपया कमा नहीं रहे हैं, 2 रुपया हम वेस्ट क्यों करेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम अपना टाइम दे सकते हैं, पैसा नहीं क्यों नहीं, मैं ये करेंगे। बोल रहा हूँ, ठीक है, हाँ, हाँ अभी अभी आप किसी को हायर नहीं करना है। हाँ। जैसे कि अगर आपके टीम में एक बंदा आ जाएगा, ठीक है, तो आप उसको फाउंडर बोल सकते हो कि भाई हाँ, आपको मैं अरे यार हम इतना क्या बोल रहे शेयर हैं कि दे अगर दूंगा। आपको आपको मन है ना कि एज हम फाउंडर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप आ जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं नहीं, कंट्रीब्यूट मैं अपनी करो। बात नहीं कर रहा हूँ भाई,
आपके कुछ दोस्त लोग होंगे, तो मैं उसके बात कर रहा हूँ कि दोस्त अगर हाँ देखिए, कोई होगा। दोस्त लोग अब जरूरी थोड़ा है कि मेरा दोस्त है तो वो लोग भी इंजीनियर ही है। बैचमेट लोग है, तो बैचमेट लोग है तो अब जैसे देखिए फाउंडर के लिए क्या है ना, कि आपका आइडिया मैच होना चाहिए, ठीक ना। हाँ वही आप सब चीजें, हाँ। देखिए टीम टीम का मतलब क्या होता है, टीम स्पिरिट का मतलब क्या होता है कि दोनों का दिमाग सेम गोल पर फोकस हो, उसको अचीव करने पर फोकस हो। अब हम कुछ और कर रहे हैं, आप कुछ और करोगे तो फिर डाइवर्सिटी इन टीम में रहता है तो इनोवेशन होता है, ये हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यार कोई एक पॉइंट पे एग्री नहीं कर रहे हो, हैं, काम को कर ही नहीं नहीं रहोगे तो दे फिर रहा। उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा ना कि अगर आपका डिपार्टमेंट मतलब आर्किटेक्चर का है, तो उसको आपको जो आर्किटेक्चर हैंडल कर रहा है उसी को आपको फाइनल वर्ड उसी का होगा। अगर हाँ कोई डेवलपमेंट कर रहा है तो उसी का फाइनल वर्ड होगा। ये आपको रूल्स मेंटेन करने पड़ेंगे। हाँ, पूरा सजेशन ग्रुप कोई भी है, आदमी दे सकता है, लेकिन डिसीजन होगा एक पार्टिकुलर पर्सन का होना चाहिए। एक पर्टिकुलर पर्सन का, हाँ ये फाइनल वर्ड, तभी ये तो उसका। हाँ अदरवाइज फिर वो बोलते रह जाएंगे भाई हाँ ये सही है वो सही है, हाँ। अब से क्या होगा, फाइनल पे पहुंच नहीं देखिए पाएंगे। हम लोग का क्या है ना कि देखो बहुत बड़ा बड़ा कंपनी है, हाँ टीसीएस है, हमारा कितना बड़ा बड़ा कंपनी है, इंफोसिस है, विप्रो है, हाँ। अभी सब लोग कोशिश कर रहा है प्रोडक्ट पे शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि सर विशेष में क्या होता है कि बहुत सारा कॉस्ट मतलब कि यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है सही से। बहुत लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर रहे थे, प्रोजेक्ट नहीं है, कंपनी में बैठ के पैसा ले रहा है, बेचिंग पीरियड इसको बोलते हैं। हम्म? सोच रहे हैं कि सब हम्म। लोग अपना अपना प्रोडक्ट रहेगा तो कहीं पर नहीं, जो प्रोजेक्ट मिला है तो अपना प्रोजेक्ट पे लगा देंगे, अपना प्रोजेक्ट। अभी देखो 2-3 महीने के अंदर ना अभी सब लोग इसमें आना चाहेंगे। अभी हम लोग कुछ करके दिखाएंगे तब ना। अब इस बात है, आप हम पे क्यों विश्वास करोगे, अगर हाँ हम वही वही, आप नया बंदा क्यों विश्वास करेगा ना। तो और इस उसके लिए आपको पहले बेसिक आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि आपका आर्किटेक्चर बना दो आप, ये हाँ सर्विसेज ये है लिस्टेड है। और फिर उसके ऊपर फिर लोग अपनी ब्रांचेस बना के कुछ इनपुट देंगे यूआई के लिए। हाँ। सिंपल हेडर लगा दिया, कुछ अभी लोग लिस्ट लगा अभी दिया। अभी तो लोगों के पास रिज्यूम में डालने के लिए कुछ है ही नहीं है। अभी आप कंट्रीब्यूट करोगे, आप लोग तो बहुत लोग हैं कि लोग 10-10 हज़ार रुपया देते हैं कि भाई हमको खाली एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिला दे भाई, हमको केवल ई करा दे भाई, है। हाँ मेरे दोस्त लोगों ने भी किया है हाँ सब तो करते हैं। हाँ तो हम लोग स्टार्टअप का खरीदा थे, पैसा हम लोग कमाए थे, तो हमको बहुत मालूम है। तो भाई यहीं पे खत्म करते हैं, और पंकज हम लोग आप थोड़ा एक अपने चलो भाई, बेसिस पे एक आर्किटेक्चर तैयार कर लेना, ठीक ना, प्रॉपर फॉर्मेट में, ठीक है। और हम लोग डिस्कस करेंगे। हायर लेवल वाला करके देखूंगा हाँ मैं, ये जो आपने बताया तीन चार, मतलब जो हाँ भी समझ में आया। हाँ। और अपने लेवल पर कभी मीटअप आपको आपको करेंगे। आपको आपको जो बेस्ट लग रहा है ना, वो टूल से अपना इस्तेमाल करना, वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना है, ठीक ना। और कैसे डिजाइन करेंगे क्या है पूरा, मतलब हाई लेवल पर तो करना ही है, थोड़ा सा लो लेवल पर भी थोड़ा फोकस करना है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, ठीक है। है ना। हम्म। तो अभी कितना समय लेंगे आप कि हम लोग दोबारा कनेक्ट होंगे, देखिए सीरियस में नेक्स्ट वीक रहो। वीकेंड पे करते हैं। हाँ वही अभी भाई ये देखो सबसे ये मनी इम्पोर्टेंट नहीं है, है ना अभी के लिए। अभी ये टाइम सबसे मतलब मेरे लिए बात कर रहा हूँ मैं, तो मेरे लिए टाइम बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है और ना। नॉलेज, स्किल क्योंकि स्किल मैटर करता है। हाँ स्किल आप सीख रहे हो तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा टाइम, तो वही टाइम ही हम्म। इम्पोर्टेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी मेरे हिसाब से, तो मेरे लिए। अभी खाली मेरा स्केलर पे जॉब हम भी लोग चल रहा कर है। लेंगे, स्केलर पे कर लेंगे, कुछ बनाएंगे तो फायदा क्या है भाई इतना डीएसएस सीखने का। हैं? हाँ वो बात बताया ना सर ने कि डीएस से आप इतना सीख रहे हो तो कंपनी में अमेजोन भी गूगल में भी जाओगे तो वहाँ पे भी इतना जो सीख रहे हो उतना नॉलेज यूज नहीं होता। हम्म। जैसे नॉर्मल फंक्शन कॉल वही है, थोड़ा बहुत कभी साल में एक दो बार यूज करना पड़ेगा आपको। एल्गोरिथम स्पेशल थोड़ा बहुत दिमाग लगा अभी के, अभी वरना तो नॉर्मल ही होता है। अभी सच में बता रहे हाँ हैं, हम लोग ना इसके थ्रू ना बहुत कुछ कर सकते हैं। हम लोग यार आदमी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम है, ये हम लोग के आसपास तो ऐसा प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको मोनेटाइज भी कर सकते हैं। ये हॉस्पिटल इंडस्ट्री जो है ना ये, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे आपको, लेकिन मैं सिस्टमेटिक सिस्टम लेवल पे मैं हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन बाकी। इम्प्लीमेंटेशन हम पे छोड़ दीजिए, हम कैसे इम्प्लीमेंट हाँ करेंगे मेरा वो, है, अपने नेटवर्क के थ्रू हम कर लेंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं। हाँ क्योंकि वो भी अगर आपको लाइव जाना है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ डॉक्टर का नेटवर्क, हाँ, कोई सिटी एक सिटी में करेंगे तो उस सिटी में कम से कम चाहिए।
है ना, आपको यूजर्स दिखाने पड़ेंगे, ये सब चीजें। देखिए ये सब करते हैं लोग मार्केटिंग वाला, हम लोग माउथ टू माउथ जाने वाला है मार्केटिंग। एक आदमी इस्तेमाल करेगा, वो 2 आदमी को बताएगा कि भाई यहाँ पे सही है। वो 1000 रुपया लेता था, आए हम 500 रुपये में कनेक्ट हुए, मेरा तबीयत ठीक हो गया, मुझे ऐसा होता था, तो मुझे वैसा होता था, हमको कहीं जाना भी नहीं पड़ा। ठीक है, आप ये देखिए कि इस फील्ड में कोई और कौन कौन सा सिस्टम्स है, एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, और उसको थोड़ा मतलब स्टडी करिए। स्टडी करके, हाँ हम लोग उसका हाँ, क्या उसका वीकनेस है, क्योंकि क्या उसका मेरिट है, उसको हम लोग स्टडी मेरिट करके हम है, लोग वो अपना कैसे बढ़िया कर रहे बनाएंगे। हैं। हाँ हम्म, ठीक है ठीक है, दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। हाँ नेक्स्ट वीक क्या टाइमिंग रहेगा? हाँ, टाइमिंग हम लोग एक प्रोफेशनल क्लब का भी इवेंट होता है हर एक संडे को, तो मिस ना हो जाए। क्या होता है? हम लोग एक प्रोफेशनल क्लब है, आपको भी नहीं तो उसमें हम ऐड मेरे कर को देंगे। अच्छा, ठीक है, कर, हाँ चलेगा। उसमें हम लोग हर एक वीकेंड पे हम लोग मीटिंग करते हैं, पार्टी वार्टी जैसे कुछ भी, कोई टॉपिक कोई अच्छी पे बात करते हैं हम लोग। स्केलर में ही। स्केलर का ही ग्रुप से आउट है, मतलब कि स्केलर का ही स्टूडेंट है उसमें, जो लोग इंटरेस्टेड अच्छा, होता है प्रॉब्लम और सॉल्विंग। ठीक है, चलेगा। ठीक है, मिलते हैं तब नेक्स्ट वीक में। हाँ, कितना संडे सैटरडे को इवनिंग में मिलते हैं। सैटरडे को मिलते हैं, हाँ ठीक है, मैसेज कर देंगे आपको। हाँ थोड़ा थोड़ा इसमें सीरियसली थोड़ा कुछ आर्किटेक्चर लेके आइए मॉडल। चलेगा, चलो, ओके, बाय, गुड नाइट। चलो, बाय, थैंक यू।